तो हम लोग को आज पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर. सो हाउ एनर्जी कैपेसिटर इज चार्ज्ड. चार्ज्ड मीन्स उसको एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, एनर्जी उसमें स्टोर कर रहे हैं, चार्ज को स्टोर कर रहे हैं. तो चार्ज को स्टोर करने के लिए जब भी आप चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर का दोनों प्लेट, ये कैपेसिटर है और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, इसको एक सेल से जोड़ते हैं, बैटरी सेल या बैटरी से जोड़ते हैं. इसको जोड़ने से क्या होता है कि ये सेल, दिस सेल डज सम वर्क. कौन सा वर्क? इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट. वर्क हैज बीन डन बाय दिस सेल. सेल में होता है केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड in the cell or battery. That energy is utilized. As we know that energy neither be created nor be destroyed. So this chemical energy stored in the cell get converted into electrostatic energy of the capacitor. How? ये नेगेटिव प्लेट से चार्ज को पॉजिटिव प्लेट पे ट्रांसफर करता है. सेल क्या करता है? नेगेटिव प्लेट से चार्ज को पॉजिटिव प्लेट पे ट्रांसफर करता है. ड्यूरिंग ट्रांसफर दिस सेल डज सम वर्क. सो ऑन द कॉस्ट ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. सो देयर इज सम वर्क डन. देयर इज सम वर्क डन. तो हम लोग मान ले रहे हैं कि C इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, ड्यू टू विच Q अमाउंट ऑफ चार्ज, कैपिटल Q अमाउंट ऑफ चार्ज और स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. सो व्हाट विल बी द वर्क डन by this cell in transferring Q amount of charge from one plate to another plate of the capacitor. So there is work done, and we know that work done dW is given by V into dQ. This is at a time Q amount of charge will not be transferred. First small amount of charge will be transferred, then next small amount of charge will be transferred. As a whole, total charge Q amount will be transferred. Potential, this is V, potential. What is potential? Amount of charge. Potential is defined as the work done required to bring unit positive charge from infinity to the point. Here there is a two plate. So this is work done in transferring small amount of charge, 1 plus 1 coulomb of charge or unit charge from one plate to another plate. So what will be the total work done and what will be the total charge? What will be the work done in transferring total charge from one plate to another plate? This is the basic formula to derive the energy stored in a capacitor. Work done. Who does work? Cell. What is the energy stored in cell? Chemical energy. That energy get converted into electrostatic potential energy. So this will be work done, or it will be electrostatic potential energy. Total work done is denoted here as electrostatic potential energy. So UE is the electrostatic potential energy, which is equal to the work done. Now since we know here, since C is equal to Q by V, therefore V is equal to Q by C. Here Q by C. If you have taken here a small q,
then you have to take, this is the total amount of charge. So you have to substitute the value of V in this equation. You will get Q by C into dQ. Q by C into dQ. Better we have to write here capital dQ because Q is the variable here. Q यहाँ पे vary करता है, थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफर होता है. Therefore 1 by C integration Q dQ. This will be the expression. From zero charge to total Q charge, we are transferring a small q. We are taking here a small q or capital Q. Depend on you कि आप total charge को क्या लिखते हैं. तो 1 by C integration Q dQ. If we integrate this, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो what we will get here? We will get here energy is equal to, electrostatic energy is equal to 1 by C into, अब इसका क्या होता है भाई, x dx का इंटीग्रेशन. कोई भी बोलिए, बायो वाला बोलो, महिमा बोलिए. q dq का इंटीग्रेशन कितना होगा, x dx. फॉर्मूला इज हियर x to the power n dx is equal to what? This formula will be used. Here power is 1. महिमा खाली जोड़ ली है, लगती है नहीं बोल पा रही है. निकल गई है वो. एनी अदर? सोनी? मैथ वाला कोई बोलो. तुषार? सर हम बोले. हाँ बोलो. q स्क्वायर बाई 2. हाँ, क्यू स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1. तो यहाँ 1 जो है, यहाँ पे q का n जो है 1 है, इसलिए ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2. एंड देयर इज ए लिमिट 0 to q. So if we put upper limit minus lower limit, this will be q square by 2 minus 0. Therefore, you will get electrostatic potential energy is equal to q square by 2c. Q square by 2c. This is the electrostatic potential energy stored in the capacitor. Very simple to derive the expression. ये आपको आता है 3 मार्क्स में आता है. ठीक है, q square by 2c. So if we put here, if we know that c is equal to q by v, therefore q is equal to cv. अगर इसको पुट करते हैं तो ये वाला एनर्जी जो होता है ये मिल जाता है c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c इज इक्वल टू हो जाता है 1 by 2 cv स्क्वायर. So electrostatic potential energy is also equal to 1 by 2 cv square. दूसरा फॉर्मूला ये भी हो जाता है. अगर इसके जगह हम लोग अगर दूसरा पुट करते हैं, ठीक है, इसी के जगह अगर हम लोग अलग क्यूबी के टर्म में, चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में, देखिए चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में है, ये पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के टर्म में है. अगर हम लोग चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहें तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं. आपको इसी में हम लोग पुट कर देंगे. ये हो गया, 2 फॉर्मूला हो गया यहां. यहां पे हम लोग अगर इसी को डिराइव करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1 by 2 cv इंटू v कर दे यहां पे, और c इज इक्वल टू q बाई v होता है और q इज इक्वल टू cv होता है. इसको पुट कर दे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू qv. सो यू हैव 3 फॉर्मूला. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2c. फर्स्ट फॉर्मूला. Second formula is this, half cv square.
थर्ड फॉर्मूला इज दिस, हाफ क्यू इंटू वी। जहां पे जिसकी जरूरत हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो दिया है उसके अनुसार आप फॉर्मूला को यहाँ पे सेटअप करेंगे और ये करेंगे आप। अब हम लोग थोड़ा सा यहां से ही बढ़ जाते हैं कि एनर्जी डेंसिटी, व्हाट विल बी द एनर्जी डेंसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, व्हाट विल बी द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी stored in the capacitor by volume of capacitor. This is the formula of density. मास बाई वॉल्यूम, यहाँ एनर्जी डेंसिटी है तो मास डेंसिटी में लिखते हैं मास बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी में हम लोग लिखेंगे एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी बाई वॉल्यूम या आप जो भी इसको यूज करना चाहें उसको हम लोग कोई एक फॉर्मूला को लेकर के हम यूज करेंगे। हाफ CV स्क्वायर को इसलिए इसको रहने दिए हैं, किसी भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। तो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लेट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ये प्लेट का एरिया मालूम है, अल्फा हम लोग लिखते आए हैं, अल्फा इसका एरिया है और दूसरा प्लेट यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है d है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम हो जाता है, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया जो है अल्फा और हाइट जो है d यहाँ माने हैं, तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे वॉल्यूम के लिए हो गया अल्फा इंटू d। So now we will solve it and we will get the value. So half C और V को हम लोग पहले से जानते आए हैं कि E इंटू डी होता है, तो होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और ये अल्फा इंटू डी हो गया यहाँ। तो यहां से आगे अगर बढ़ते हैं तो अल्फा इंटू डी है और कैपेसिटी का भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/2 ए अल्फा एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको पुट कर दें, सी का वैल्यू हमने ये पुट कर दिया विथ एयर कोड कैपेसिटर, वी इज इक्वल टू ई डी, सी इज इक्वल टू ए अल्फा एप्सिलॉन नॉट बाई डी और वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ये पुट किया हमने यहाँ पे। पुट करने से आपको क्या मिल जाता है, हाफ अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अल्फा डी स्क्वायर। अल्फा कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, energy density of the capacitor will be equal to half epsilon naught into E square. You can see here energy density does not depend on the size of the capacitor. It depends on the electric field generated between the capacitor. Capacitor के बीच जो electric field and medium कौन सा चीजें हैं, जैसे यहाँ एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम के लिए है या एयर के लिए है। इफ द कैपेसिटर कंटेन्स सम लिक्विड देन यू हैव टू पुट हियर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड और परमिटिविटी ऑफ द लिक्विड। इफ इट इज कंसिडरिंग माइका देन यू हैव टू, दैट इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक, उसका आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सो यहाँ पे एनर्जी आ रहा है तो पहले एनर्जी का यूनिट जो होता है वही होगा, एनर्जी डेंसिटी वॉल्यूम आ गया इसलिए जूल पर मीटर क्यूब होगा। शिवम कुछ पूछना है क्या? यस सर। बोलिए। अल्फा इंटू डी के लिए सर, कैपेसिटर का वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस के लिए। मान लो कि ये जो है आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका ये एरिया होगा ना, एरिया इंटू हाइट होता है ना वॉल्यूम, ठीक है। एरिया इंटू हाइट विथ वॉल्यूम। हमारे पास क्या है कि ये डी है डिस्टेंस है
और इसका एरिया, प्लेट का एरिया दिया हुआ है अल्फा। तो इधर से आप मान लीजिए, इसी को फिगर को आप चेंज कर लीजिए, इस तरीके से ले लीजिए। ये प्लेट है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अल्फा है और ये हाइट जो है ये आपको डी है। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम का मतलब हुआ कि डायमेंशन 11 पढ़े हुए, डायमेंशन एल क्यू। तो यहां देखिए डायमेंशन हो जाता है, एरिया का एल स्क्वायर और डिस्टेंस का एल क्यू। तो डायमेंशनली भी अप्रूव्ड है और ऐसे फॉर्मूला भी होता है एरिया इंटू हाइट। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्लेट तो एक लाइन नहीं होगा, एक प्लेट होगा, उसका एरिया इंटू हाइट, दैट विल बी द वॉल्यूम। और कोई क्वेश्चन? नो। So this is all about energy stored in the capacitor and energy density. It comes in 3 marks question in board examination, CBSE.